Hello students, welcome once again to the web classes. So today again we are going to see the subject accounts, unit number 6. The name of chapter is retirement / death of a partner. For the 12th commerce English medium, this is lecture number 6 for this chapter. Today we are going to attempt sum number 9. So the headline of the question is Madhav, Radha and Gopi are the partners sharing profit and loss in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6. Balance sheet of the firm as on 31st/3/2016 was as under. So here the ratio is given to you, but that is not in the ratio form, that is in the fractional form. So what we require to do is हमें सभी का डिनोमिनेटर सेम करना है. वी नीड टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर्स. सो दिस इज 1/2, दिस इज 1/3, दिस इज 1/6. तो हमें सभी के डिनोमिनेटर को 6 में कन्वर्ट करना है. टू कन्वर्ट दैट 2 into 6 you need to multiply it with 3. To convert that 3 into 6 you need to multiply it with 2. 6 is already 6. Okay, so numerator will also be multiplied with the same. So finally your ratio would be 3:2:6. This would be your old P&L ratio. Hopefully you have got the point. So the ratio was in fraction 1/2, 1/3 and 1/6. We just equalized the denominator. So 1/2 became 3/6, 1/3 became 2/6 and 1/6 is already 1/6. So sorry, this is 1/6. I think I have mistaken. Yeah, this is not 6. This is just a second, 1. Okay, so the ratio is 3:2:1. 3:2:1. This is our old ratio. Now let's read the adjustment. My request is to open your book, the same question, and read it with me and do tick marks. The first headline: Radha retired from 1/4/16. Partner decided that value of patent to be reduced by 20%, whereas value of building is to be reduced to 90%. So tick mark on patent and building. So do tick mark on patents and building. Okay, then liability of workman compensation reserve is decided at 30,000. So liability of workman compensation decided at 30,000. So do we have workman compensation? Do tick mark. This is point number 2. Okay, so point number 2 for the workman compensation reserve. Then bad debt reserve on debtor is to be increased by 5%. So tick mark on the debtors. Yeah, here we have. Then 40,000 is to be paid to Radha as her share in goodwill. Okay, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा. इसके लिए आपको गेन और सेक्रीफाइस रेशियो की जरूरत पड़ेगी. गेन रेशियो स्पेशली. 500 रिसीव फ्रॉम बैड डेट रिटर्न ऑफ अर्लियर ₹3,000. इसका भी कोई टिक मार्क नहीं होगा. ₹5,000 is to be paid to Radha in cash and the balance amount in 2 equal annual installment with 10% interest per annum. So ये है लोन, है ना. बचा हुआ पैसा 2 equal annual installment, मतलब हम रखने वाले हैं लोन. इसके लिए आपको एक प्रिपेयर करना होगा लोन अकाउंट, जो कि आपके सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिया गया है. तो लोन अकाउंट के बिना ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ऑल्सो प्रिपेयर राधाज लोन अकाउंट टिल इट फाइनली पेड. तो लोन अकाउंट मैं प्रिपेयर नहीं करने वाला. आपके सिलेबस में से लोन अकाउंट एलिमिनेट हो चुका है. ओके, सो होपफुली आपने सभी ने मेरे साथ में टिक मार्क कर लिए हैं. सभी ने जो है क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया है. अब आपका काम है अकाउंट ड्रॉ करना. कौन कौन से अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे? तो आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड प्रिपेयर द अकाउंट. होपफुली आप सभी ने अकाउंट प्रिपेयर कर लिया होगा. तो चलिए हम 1 by 1 सारी चीजें सॉल्व करते हैं. सबसे पहले लायबिलिटी पोर्शन पे आ जाइए. लायबिलिटी पोर्शन में आने के बाद क्या करना है,
तो वन बाय वन सारी चीज़ें हम लिखते जाएंगे रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे। जैसे कैपिटल है तो कैपिटल आ जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट हियर वी हैव, देखो मैं जैसे जैसे एक एक एंट्री बताऊँ आप वैसे वैसे एक एक एंट्री देते जाओगे, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,36,000, 50,000 एंड 54,000। देन क्रेडिटर्स, सो क्रेडिटर्स एज इट इज नो टिक मार्क, सो लायबिलिटी पोर्शन में ये क्रेडिटर्स 50,000 ऐसे कैसे लिखे जाएंगे। सो क्रेडिटर्स आर ऑफ 50,000, यू कैन सी दिस द क्रेडिटर 50,000, तो आप भी क्रेडिटर की एंट्री कर दीजिए। इसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24,000, इस पर है एडजस्टमेंट नंबर 2, तो एडजस्टमेंट नंबर 2 रीड कर लीजिए। एडजस्टमेंट नंबर 2 कहता है लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिसाइडेड ₹30,000, तो लायबिलिटी है 30,000 की और हमारे पास रिजर्व कितना है, तो रिजर्व है 24,000 का, मतलब 6,000 रुपये एडिशनल, तो एडिशनल जा रहे हैं 6,000 रुपीज़, तो जो एडिशनल 6,000 रुपीज़ हम देने वाले हैं क्लेम का, वो हमारा हुआ लॉस, वो आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आइए और देखिए सबसे पहला होगा टू वर्कमैन लायबिलिटी 6,000, इज दैट क्लियर। और जो 30,000 की लायबिलिटी हमने एक्सेप्ट की है, ये 30,000 हमारा आ जाएगा लायबिलिटी पोर्शन में। तो देखिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी पोर्शन में ये रहा लायबिलिटी 30,000 रुपीज़, इज दैट क्लियर। सो वर्कमैन लायबिलिटी 30,000 रुपीज़। देन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो लायबिलिटी होती है, एज इट इज बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट में आप देखिए एज इट इज लिखा होगा पीएफ, पीएफ मीन्स प्रोविडेंट फंड 15,000 रुपीज। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में, लेकिन कब, अगर सामने इन्वेस्टमेंट पे किसी भी टाइप का कोई एडजस्टमेंट ना हो तब। तो चेक कीजिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट जो है 58,000 का है और उस पर मार्केट वैल्यू लिखी हुई है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट का पॉइंट सॉल्व करेंगे उसी टाइम हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पॉइंट भी सॉल्व कर देंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द एसेट साइड। तो इस साइड में हमने क्या बाकी रखा, हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बाकी रखा। एसेट साइड में आते हैं तो सबसे पहला है कैश, तो कैश अकाउंट आपने प्रिपेयर किया होगा, कैश अकाउंट के डेबिट में जाइए और लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 रुपीज। देन डेटर्स, सो डेटर्स आर गिवन टू यू ऑफ ₹80,000, तो डेटर्स 80,000 एज इट इज लिख दिया जाएगा। इनर कॉलम में टिक मार्क है, सो डेटर्स हियर वी हैव डेटर्स ऑफ 80,000 रुपीज। देन इसके बाद है स्टॉक, है ना, ये बीडीआर को बाद में कंसीडर करेंगे। स्टॉक इज ऑफ ₹62,000, तो 62,000 क्या कोई टिक मार्क है, कोई टिक मार्क नहीं है, तो स्टॉक डायरेक्टली अमाउंट के कॉलम में आएगा। ये रहा स्टॉक 62,000 रुपीज। देन स्टॉक के बाद है इन्वेस्टमेंट, देखो आ गया इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाला पॉइंट भी हम सॉल्व कर देंगे। तो हमें इन्वेस्टमेंट की जो है वो मार्केट वैल्यू लिखनी होती है, तो मार्केट वैल्यू 64,000, ठीक है, तो मार्केट वैल्यू 64,000 है, बुक वैल्यू कितनी है 58,000, तो कितना इंक्रीज हुआ 6,000 यहाँ इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जो है वो आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चलिए और देखिए क्या 6,000 का प्रॉफिट लिखा हुआ है, ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप देख सकते हो क्रेडिट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 6,000 और 64,000 की अमाउंट बैलेंस शीट में आपको दिखेगी इन्वेस्टमेंट 64,000। ओके, अब आ जाइए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो आप देख रहे हो, जो हमने बाकी रखा था 12,000 रुपीज़, ये 12,000 रुपीज़ पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी टाइप का कोई लॉस नहीं है। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशियो होगा 3:1, ओके, ओल्ड रेशियो। सो 12,000 इन 3:1, 6,000, 4,000 एंड 2,000 कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो कम टू द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये देखिए बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व 6,000
4,000 एंड 2,000। देन उसके बाद है पेटेंट बिल्डिंग, इन दोनों पर टिक मार्क है तो दोनों ही इनर कॉलम में लिखे जाएंगे। पेटेंट एंड बिल्डिंग, ये रहा पेटेंट 35,000 एंड बिल्डिंग 75,000। इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट कंपेन्ड एक्सपेंडिचर 24,000 रुपीज़। सो एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक्सपेंडिचर 24,000, ये अक्यूमुलेटेड एक्सपेंस है, फिक्टिशियस एसेट है जिसे रिटर्न ऑफ किया जाता है कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इज 3:1। सो आ जाइए ओल्ड रेशियो कैपिटल अकाउंट, तो ये रहा कैपिटल अकाउंट। अब देखिए टू एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक्सपेंडिचर, ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आएगा 12,000, 8,000 एंड 4,000 रुपीज़। इज इट क्लियर? नाउ पूरा बैलेंस शीट हमने सॉल्व कर लिया, इसमें कोई भी पॉइंट बाकी नहीं है, सारे पॉइंट सॉल्व कर दिए गए एक्सेप्ट दिस बैड डेट रिजर्व। ये बैड डेट रिजर्व को हमने कंसिडर अभी तक नहीं किया है, तो डेटर का पॉइंट सॉल्व करते टाइम इसे हम कंसिडर करेंगे। नाउ अब एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, तो एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन से कलर से एडजस्टमेंट सॉल्व किया गया है। नाउ the value of patent is to be reduced by 20%, whereas the building is to be reduced to 90%। 290% मतलब 10% रिड्यूस करना है, तो पेटेंट में 20% और बिल्डिंग में 10%। आइए, सो पेटेंट ये भी है। आप देखिए पेटेंट जो है हमारे हैं 35,000 के, उसका 20% होता है 7,000 रुपीज़। ये 7,000 माइनस किया, बचा हुआ 28,000 ये रहा। बिल्डिंग में 10% माइनस करना है, 75,000 का 10% अगर करेंगे तो 7,500 आता है, ये माइनस करने पे बचा बैलेंस 67,500। दोनों पे ही आपने माइनस किया है, तो माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब हुआ लॉस, तो लॉस आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आइए, देखिए पैटर्न लिखा हुआ है, टू पेटेंट अकाउंट 7,000 एंड टू बिल्डिंग अकाउंट 7,500 रुपीज़। इसके बाद सेकेंड तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका। बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर इज टू बी इंक्रीज बाय 5%। इंक्रीज बाय 5% मतलब ऑलरेडी जितना बीडीआर है उतना तो रखना ही है, एडिशनली 5% इंक्रीज करना है, ठीक है। तो पहले 5% हम करते हैं, उसका होता कितना है बीडीआर? तो बीडीआर अगर आप डेटर अगर देखते हो, कहाँ है डेटर? ये रहा, तो ये रहा डेटर्स, 80,000 के हैं डेटर्स। 80,000 का 5% करेंगे तो आएगा 4,000 रुपीज़, ठीक है। वहाँ क्या लिखा हुआ था? इंक्रीज्ड बाय। इंक्रीज्ड बाय का मतलब है ऑलरेडी जितना था उतना तो रखना है, एडिशनली 4,000 रखना है। तो ऑलरेडी कितना रखा हुआ था? तो देखिए ऑलरेडी आपको ओल्ड बैलेंस शीट में, मतलब क्वेश्चन के बैलेंस शीट में आपको दिखेगा 5,000 वॉज ऑलरेडी देयर। न्यू BDR increased 4,000, 5,000 plus 4,000 that is 9,000, so total deduction will be 9,000 rupees। so ये 9,000 आप यहाँ से माइनस करोगे, BDR ये रहा BDR 9,000 माइनस 71,000 आउट। नाउ रिवैल्यूएशन में इफेक्ट कितने की जाएगी? तो रिवैल्यूएशन में इफेक्ट 4,000 की जाएगी, क्योंकि एडिशनल तो वही रखा गया था। तो डेबिट साइड में देखिए टू BDR अकाउंट 4,000 रुपीज। देन आफ्टर 40,000 is to be paid to Radha as her share of goodwill in as her share of goodwill। so 40,000 राधा को पे करना है। ये पे करेगा कौन? तो गेनिंग पार्टनर पे करते हैं। नाउ न्यू रेशियो तो दिया है नहीं, तो गेन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। राधा को छोड़ो, जो बचा वो हो जाएगा गेन रेशियो। तो राधा जो है वो सेंटर वाली पार्टनर है, तो सेंटर का मतलब पोर्शन 2 हटा दो, तो वो जो 40,000 है वो 3:1 में कौन देगा? माधव एंड गोपी। सो माधव एंड गोपी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। आइए, माधव और गोपी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। यहाँ देख सकते हैं आप, माधव मीन्स M, ये रहा देखो 30,000 डेबिट एंड 10,000 डेबिट। किसको दिया पैसा? राधा को, R, और राधा को मिलेगा 30,000 माधव ने दिए और गोपी ने दिए 10,000। इस तरह से गुडविल की इफेक्ट यहाँ होती है पूरी। इसके बाद ये वाला पॉइंट पूरा हो गया। इसके बाद है 500 रिसीव फ्रॉम बैड डेट रिटर्न ऑफ अर्लियर ₹3,000। तो पहले मतलब पास्ट में कभी हमने 3,000 का एक बैड डेट लिखा था,
तो जब लिख दिया था इसकी तो कोई बात है ही नहीं, उसमें से हमको 500 मिले, तो 500 मिले मतलब क्या हुआ, तो 500 मिले मतलब वो होगा क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा 500 रुपीज़, ठीक है, उसे कहेंगे बैड डेट, बैड बाय कैश, ये लिखें बाय कैश, क्योंकि कैश आया 500 रुपीज़, और कैश अकाउंट के डेबिट में इफेक्ट आएगी। तो कम टू द कैश अकाउंट, ये रहा कैश अकाउंट, इसके आप डेबिट में इफेक्ट दोगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 500 रुपीज़, इस तरह से ये बैड डेट रिटर्न की एंट्री होगी। तो होपफुली जैसे जैसे मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ आप भी उस तरह से एंट्री देते जा रहे होंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज 5,000 टू बी पेड टू राधा इन कैश, ओके, 5,000 राधा को कैश पे करना है, एंड बैलेंस अमाउंट इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद 10% इंटरेस्ट। तो ये तो हम करने वाले हैं नहीं क्योंकि लोन अकाउंट हम बना नहीं रहे। 5,000 अभी अभी पे कर सकते हैं राधा को, चलो पे कीजिए। सो राधा के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, सो डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट 5,000, ये रहा, टू कैश 5,000 इन द डेबिट साइड, एंड कैश के क्रेडिट में, तो कैश के क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय राधास कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपीज़। ये पूरा हुआ। सो सारे एडजस्टमेंट हमने पूरे कर लिए। अब हमें 1 बाय 1 अकाउंट क्लोज करना है। सो क्लोज द अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर क्लोज करोगे तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 24,500, 24,500 माइनस दिस वैल्यू, द बैलेंस इज 18,000 रुपीज़। ये 18,000 जो है 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आएगा 9,000, 6,000 एंड 3,000। ये डिस्ट्रीब्यूशन आप कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000, 6,000 एंड 3,000। सबसे पहले किसका अकाउंट क्लोज होता है, तो जो हमें छोड़ करके जा रही है या जा रहा है उसका अकाउंट क्लोज होगा। सो राधा का इस साइड का टोटल आता है 94,000, 94,000, इस 94,000 में से इतनी वैल्यू आप माइनस कर दोगे तो फाइनली राधा को देने लायक अमाउंट जो है वो 75,000 बचती है, तो वो आ जाएगी 75,000 इधर, और उसे लिखेंगे हम टू 10% लोन, और ये लोन जो है लाइबिलिटी में लिख दिया जाएगा। तो ये लाइबिलिटी में आप देखिए राधाज लोन अकाउंट 75,000। बचे हुए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जैसे हम क्लोज करते हैं नॉर्मली वैसा ही क्लोज होगा। तो MNR आप क्लोज करोगे, उनका बैलेंस बचता है 91,000 एंड 39,000। तो ये बैलेंसेस जो हैं बैलेंस शीट में लिख दिए जाएंगे 91,000 एंड 39,000, टोटल इट बिकेम 1,30,000। अल्टीमेटली लास्ट में आप क्लोज करोगे कैश अकाउंट, द टोटल ऑफ दिस साइड इज 12,500, 12,500 माइनस 5,000, 7,500। सो 7,500 इज आर क्लोजिंग कैश। सो क्लोजिंग कैश हम लिखेंगे 7,500। सो इस तरह से ये सम कंप्लीटली पूरा होता है। आपको ये सेम सम 2 टाइम करना है। इनफैक्ट अभी तक जितने सम चलाए गए हैं वो सारे सम आपको 2 टाइम कंप्लीट करने हैं, ठीक है। सो दिस इज द इलस्ट्रेशन, this is the homework, illustration 13, 14 and 15 and sum number 5, 6, 7, 8, 9. So hopefully you have got the point, आपको ये सम समझ में आया होगा। So अगले लेक्चर में हम एक नए सम के साथ मिलेंगे। Till then, goodbye, thank you.